Hello, ma'am. How are you? Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Yes, so we have a live audience with us. People are joining as and when they can. I welcome you to Mansa. And as I said before, हम यहाँ पे live जा रहे हैं आप लोगों के साथ अपनी happiness share करने के लिए. Mansa is now officially 2 years old, and we are very grateful for the audience. We are very grateful for the support we have received from our interns, from the volunteers, and from our own team as well. Ma'am, would you like to say something? Yeah, of course. I think we should wait for another 2 minutes because time is Sure, 2:30. ma'am. Sure, ma'am. Meanwhile, is my audio clear? Yes, your audio clear, but your video is not coming. Is it stuck or is it not visible? Ma'am, your video is not available. Those who have joined us live, can you please let us know that our audio and video are visible or not? Audible as well? Ma'am, now you're visible. Am I audible to you, ma'am? Since the time was 2:30, we'll be starting at that time. So just give us 2 minutes. There is some network issue, I believe. Yeah, you're visible, ma'am. Are you able to see my video? Audio is clear, Yes, ma'am. Yes, ma'am. but I'm still not able to see you. I think that is how this works. I'm not sure, but I think this is how it works. Can anyone from the audience confirm us if videos are visible or not? Yes. One person did, Janice. It's visible. I think we can start, ma'am. They are audible? Yes, ma'am. You're audible, ma'am. Okay, so very good afternoon, everyone. As Divya mentioned, here we are just to show our gratitude as we completed 2 years of Mansa Global Foundation for Mental Health, an initiative which started in 2018 with the great hope to spread community mental health reach. Because whenever we deal with the patient, सबसे बड़ा issue ये आता था, okay, we are ready to come for the therapy, but what about the families? Our family is not ready to understand कि थेरेपी भी कोई पार्ट है ट्रीटमेंट का. सिर्फ बात ही तो करना है, वो आप हमसे भी कर सकते हो. So it became so important कि people need to understand what is mental health and what is psychotherapy, why we need to go for therapy. It's just not only talk therapy, but they are recognizing your mental illness, they are recognizing your mental state, or if any mental disorder is there. And there are three different states: mental health, mental disorder, mental illness. Sometimes we just come off कि उसको वो mental हो गया है, तो ये क्या डिफरेंसेस हैं, हमें क्या सपोर्ट चाहिए होता है, उन सब के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए वी स्टार्टेड विथ मनसा. एंड फाइनली इन आफ्टर 1.5 year we realize, okay, now we need a foundation which can work effectively in government and non-government setup. So we are having Mansa Global Foundation, and with all your support, especially I'm thankful to all my interns, all the volunteers, because it's completely a initiative by volunteers, by interns. They are the one who come up with their ideas, who come up with their content, and whatever content you are getting on Bansa Global Foundation, it's their hard efforts. So we are thankful to our interns. Thank you guys Yes, for all. ma'am. Thank you so much. Yeah, and thank you for sparing your time into your internship program. We just asked you, and you always put your best efforts. It's actually worth it. You are also going to learn this thing कि yes, हमें लोगों से कैसे बात करनी है, लोगों को कैसे अवेयर करना है, and through you only Mansa is working. So we are grateful, we are thankful to you. And then coming to
the audience, our followers, all the supporters who are always with us directly or indirectly with their ideas, or sometimes, to show the support to all our initiatives. We have done so many sessions. I still remember, you must have checked that video, anniversary video. So you must have learned about various workshops. So sometimes on mindfulness, sometimes on resilience, and we always got good participation in all the workshop. You always appreciated us. So, and we are looking forward to it for your support. So thank you, me and Divya from Mansa Global Foundation. We are grateful and thankful. We're thankful. Yeah. Thank you so much, everybody. Yeah, so Divya, I would like to ask you, because as a founding member, you are also like, she is my back support for the Mansa. So you share your experience in last 2 years, how it changed from Mansa Initiative to Mansa Global Foundation, and where you see yourself as a founding member. You also started as an intern, now you are a founding member for Mansa Global Foundation. क्या change हुआ, कितनी responsibility change हुई? What about your journey? So, ma'am, if I talk about my journey, तो वो बहुत ही it's like an upward spiral इस type का रहा है. I was an intern when we started, when we had this idea कि हम कोई community program करते हैं या community services type की start करते हैं to spread awareness mostly. So initially हमने campaigns किए हैं, ज़्यादातर दिल्ली and गुड़गांव में हमने campaigns वगैरह से start किया. And then we engaged a lot of volunteers and interns. Then ऐसे करके जो हमारी journey start हुई है, ultimately we felt the need कि okay now अब इसको foundation में convert करना चाहिए, because a foundation might have more broad reach. थोड़ा और ज़्यादा हम आगे तक जा सकते हैं as a foundation. जब वो इनिशिएटिव था तो हमारा स्कोप हो सकता है, इट माइट हैव बीन लिमिटेड, बट एज अ फाउंडेशन इट हैज मोर स्कोप ऑफ ग्रोथ एंड वी कैन रीच द कम्युनिटी ऑन अ मोर ब्रॉडर लेवल. देन जब डेवलप हुआ है एज अ फाउंडेशन, ऑफ कोर्स मैम रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैव इंक्रीज्ड. तो पहले के अकॉर्डिंग अभी बहुत ज्यादा है, बट इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इट हैज बीन अ गुड एक्सपीरियंस. एंड एज अ फाउंडिंग मेंबर आई सी अ लॉट ऑफ स्कोप. अभी हमारे पास बहुत इंटर्न्स एंड वॉलंटियर्स हैं, एंड आई होप इट विल कंटिन्यू एज अ गुड इनिशिएटिव जो अभी तक चल रहा है हमारा. Obviously, I mean, for this, yeah. So now moving forward, so आज हम सब क्या celebrate कर रहे हैं? जन्माष्टमी. जन्माष्टमी. We are a mental health initiative. We don't believe in religion, caste, and creed system, because it's all equal for us when it comes to mental health. But Janmashtami is a special, not because it is a Hindu tradition or it is a birthday celebration of a Hindu god, but it is a birthday, it is a mark to have first counselor in our Indian history. So Shri Krishna and Bhagavad Gita, these are the some basics for the psychotherapy. So if I would like to recognize who's the first counselor in Indian history for the psychology, so he was Shri Krishna. And that's why we are wishing you here happy Janmashtami. And but I would like to mention this thing कि we need to carry forward all the lessons from the Bhagavad Gita to understand the life in much better manner. And if you go in that therapeutic manner कि क्या थेरेपी में हमें क्या सिखाया गया, या आज की डेट में आप जिसे टॉक थेरेपी बोलते हैं, आज की डेट में जिसे हम बहुत नॉर्मली सीबीटी की तरह यूज करते हैं, अगर आप बेसिक्स पे जाएंगे, आप में से कई लोगों ने आई थिंक भगवत गीता पढ़ी होगी, आई एम श्योर कभी ना कुछ तो चलो पूरा नहीं पढ़ा, लेकिन कुछ तो नोट्स आपके पास भी होंगे भगवत गीता से. और एक बहुत फेमस कोट है, क्या है वो फेमस कोट? कैन एनीवन शेयर दैट प्लीज फ्रॉम ऑडियंस? एनीवन? विच इज वेरी फेमस फ्रॉम गीता, कि हम हमेशा कहते हैं जनरल कन्वर्सेशन में कि गीता में भी ये लिखा है, गीता में भी ये कहा गया है. क्या कहा गया है? मैं गेस करूं मैम? कोई आप कमेंट्स में कोई भी नहीं है? नो वन हैज एवर गीता. Anybody in the comment? एनीवन? Not so far मैम. नॉट सो फार. ओके, व्हाट इट इज? कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो. यस, एग्जैक्टली. दिस इज लाइक, आई थिंक
कॉमन स्टेटमेंट फ्रॉम गीता। किसी ने पढ़ा नहीं पढ़ा डजेंट मैटर, बट ये एक स्टेटमेंट आपको हमेशा मिलेगा, कर्म करो फल की चिंता मत करो। अब अगर मैं इसको थेरेपी में कनेक्ट करूं तो थेरेपी में आज की डेट में आप जिस माइंडफुलनेस की बात करते हैं वो एग्जैक्टली यहीं से आ रहा है। कर्म करो फल की चिंता मत करो, वॉट एवर यू आर डूइंग जस्ट बी देयर, बी माइंडफुल। आगे क्या होगा, पीछे क्या हुआ था, पास्ट में क्या था, फ्यूचर में क्या होगा, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट में रहना। ये भी हमने गीता से सीखा। और भी बहुत सी चीजें, चाहे वो अटैचमेंट की बात हो, अटैचमेंट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपको पेन होगा। डिटैचमेंट कैसे किया जाए, आपकी ड्यूटीज आपको कैसे निभानी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। और व्हेन इट कम्स टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, वहां पे कोई भी रिलेशनशिप, कोई भी अटैचमेंट आपके आगे नहीं आना चाहिए। आप कैसे फोकस हो सकते हैं, लाइफ के बारे में कितनी रियलिटी आप समझना चाहते हैं, वो सारे लेसन्स भी आपको भगवत गीता से मिलते हैं। तो आज जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पे या जन्माष्टमी के फेस्टिवल पे, आई नो एवरीवन हैज देयर डिफरेंट वेज टू सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल। कुछ लोगों ने फास्टिंग किया होगा, कुछ लोग दे मस्ट बी विजिटिंग सम टेम्पल्स। एंड जन्माष्टमी एक ऐसा फेस्टिवल है जो सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है। वी हैव मेनी फॉरेन फॉलोअर्स ऑल्सो फ्रॉम हरे राम हरे कृष्णा, बिकॉज वो ऐसा नहीं है कि वो एक भगवान को आइडलाइज कर रहे हैं, वो एक इंडिविजुअल को, एक पर्सनालिटी को, एक पर्सोना को कहीं ना कहीं रोल मॉडल बना के चलते हैं। उनकी जो टीचिंग थी, उनके जो लेसन्स थे, उनका जो वे ऑफ लाइफ था, वो उसे फॉलो करते हैं। और उसे अगर हम फॉलो करना शुरू करें तो हम अपनी डेली लाइफ में भी, जो डे टू डे लाइफ में आपके इश्यूज आते हैं, मेंटल हेल्थ रिलेटेड, स्पेशली एंजाइटी रिलेटेड। एंजाइटी आप तब लीड करते हैं जब आप फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा परेशान हैं। डिप्रेशन में आप तब जाते हैं जब आप पास्ट को लेके बहुत परेशान हैं। प्रेजेंट पे रहेंगे तो ये सारी चीजें आप बैलेंस बना पाएंगे। पास्ट इंपॉर्टेंट है, पास्ट इंपॉर्टेंट है टू गेट सम लेसन्स। जो भी हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, हर चीज से आपको एक लेसन मिलता है। उस पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ अगर आप प्रेजेंट पे रहेंगे, आपका फ्यूचर ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। उसकी चिंता करने से हमें कुछ नहीं मिलने वाला, मेंटल हेल्थ पे जरूर इम्पैक्ट पड़ेगा। पास्ट के बारे में ही हमेशा सोचते रहने से भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप कहीं ना कहीं डिप्रेशन को लीड करेंगे, गिल्ट की फीलिंग में जाएंगे, खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। तो what is forgiveness, what are positive aspects of life, if you want to understand, I would recommend, or Mansa would recommend, please read भगवत गीता एटलीस्ट वंस। नॉट इन दैट वे कि ये कोई रिलीजियस ग्रंथ है या रिलीजियस रीडिंग है, इन जस्ट अ वे कि ये आपकी लाइफ को एक नया डायरेक्शन दे सकता है। दिस इज आवर रिकमेंडेशन। यू वुड लाइक टू ऐड समथिंग इन दिस, दिव्या? नो मैम, आपने बहुत अच्छे से कवर किया है सब कुछ, जितने लेसन्स भगवत गीता से हमें मिलते हैं। एंड यस, रिलीजियस टेक्स्ट है, बट जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक रिलीजियस टेक्स्ट की तरह इसको पढ़ा जाए। एज अ पर्सन फ्रॉम अनदर रिलीजन ऑल्सो आप उसको पढ़ सकते हो। नॉट अगेन, नॉट एज अ रिलीजियस टेक्स्ट, बट टू गेट नॉलेज फ्रॉम इट। क्योंकि जैसा आपने कहा, उसमें लाइफ जीने का जो तरीका है वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। अगर उसकी चीजें हम अपनी लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं तो इट विल बी गुड फॉर अस। हम एक अच्छी लाइफ लीड कर सकते हैं। मेंटल इलनेस से रिलेटेड, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, कैसे हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं बोथ फिजिकली एंड मेंटली, दैट इज व्हाट इट टेल्स अस। तो आई थिंक इट इज समथिंग दैट एवरीबडी शुड रीड। जैसा आपने कहा कि एटलीस्ट एक बार तो सबको पढ़नी चाहिए। Yeah. So with this, we again wishing you happy Janmashtami. Go and celebrate, have fun, have good food, have good day. You, आई थिंक बहुत सारे लोगों के आज कहीं ना कहीं आई थिंक लीव्स हैं, जिनकी नहीं है, हु आर वर्किंग एज वी आर ऑल्सो वर्किंग, बट वर्क विद दैट थिंग कि जो भी आज आप कर रहे हो वो ही आपको फल देने वाला है। सिर्फ आपको कर्म करना है, या आपकी मेंटल हेल्थ को भी ठीक रखेगा, क्योंकि आपका दिमाग, आपका जो माइंड है वो कंटेंट है। उसके पास उतना स्पेस नहीं होगा जहां पे वो फ्यूचर को लेके एंशियस हो या पास्ट को लेके परेशान हो। कंटेंट रहेगा, आप पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करेंगे, जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ज्यादा हेल्दी है। एंड दैट डजंट मीन कि कभी कभी हमें लगता है कि आज मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा। देयर आर सम पीपल हु यू नो रन आफ्टर दैट परफेक्शन कि आज मैंने कुछ नहीं किया तो शायद मेरा एक दिन कम हो गया या मेरा टाइम कम हो गया। नथिंग लाइक दैट। मन नहीं कर रहा है, इट्स ओके, जस्ट एक्सेप्ट दैट फैक्ट
कि हाँ मेरा मन नहीं कर रहा है और मुझे रेस्ट करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे नेटफ्लिक्स देखना है, दैट इज ऑल्सो ओके। बट वॉट एवर यू डू it with full acceptance. That is most important for your mental health. We are always here for your questions, for your queries. एंड आपको जो, अगर आपका कोई व्यू पॉइंट है, आप कुछ और, आपका व्यू पॉइंट डिफरेंट भी हो सकता है रिगार्डिंग भगवत गीता। आई एम नॉट सेइंग कि वी आर सेइंग दिस इज कंप्लीटली राइट, this is our viewpoint. If you feel so, we are having different point of view, you can share in the comment box, you can post on our Bansa page also. We will definitely answer it, or maybe we will have a fruitful conversation about the same points, right? So be happy, be healthy, and please keep minding that your mental health much more important than your physical health. जितना आप जिम के लिए पर्टिकुलर हैं, उतना ही आप अपने मेंटल हेल्थ सेशंस के लिए अगर पर्टिकुलर हो जाते हैं, और यू जस्ट गो फॉर अ मेंटल हेल्थ चेकअप, just for mental status examination once in a year or twice in a year, that should be in your to-do list. So this is my recommendation. Thank you so much for joining us. And Thank you so much for joining us, everybody. yeah, anyone want to share anything? We are here. Any questions, anything you guys want to ask, you can ask in the comments. Or you can join us in the live also. Yes, you can do that too. And I think it's been long time we are coming live. Yes, ma'am. So now it's again a promise. Definitely we are going to be back in our usual routine where we used to have more live session. Definitely we are going to have more live session, more workshops in coming days. Anyone wants to ask any question about mental health? जरूरी नहीं है कि आज से जुड़ा हो. Okay, Karan Singh is asking, ma'am, how to get detached from someone. How to get Detached from someone. डिटैच फ्रॉम समवन। उस समवन में डिटैचमेंट के लिए पहले आपको एक डिग्री देखना है कि व्हाई दैट पर्सन इज इम्पोर्टेंट, और क्या ऐसा है जो आपकी लाइफ में उसके बिना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब भी अटैचमेंट की बात होती है, हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है ना, वो ये आता है कि मेरी लाइफ उसके बिना चल ही नहीं पाएगी, राइट? और वहां पे डिटैचमेंट का प्रोसेस शुरू करने के पहले आपको वो पूरा एनालिसिस पे जाना है। आप सबसे पहले अटैच अपनी लाइफ में किससे होते हैं? अपनी माँ से अटैच होते हैं, चाहे वो कॉर्ड के थ्रू है, आप पूरी तरीके से अपनी माँ पे डिपेंडेंट हैं। बट जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, उसी माँ से आप दूर रहना शुरू कर देते हैं। अटैचमेंट तब भी है, लेकिन बैलेंस्ड वे में है। तो डिटैचमेंट इज नॉट समथिंग कि आपने पूरी तरीके से किसी को छोड़ दिया, लेकिन आपने उस अटैचमेंट डिटैचमेंट के बीच में एक बैलेंस बना लिया, विच इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। प्रायोरिटाइजिंग योरसेल्फ कि मैं खुद के लिए, मेरी लाइफ के लिए कितना इंपॉर्टेंट हूँ, और उस पर्सन की मेरी लाइफ में एक वैल्यू है। वो मेरी पूरी लाइफ नहीं है, सिर्फ एक पार्ट है। जहां पे आपने इस फैक्ट को रियलाइज कर लिया, वो डिटैचमेंट पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन अटैचमेंट मिनिमाइज होना शुरू हो जाता है, स्टेबल होना शुरू हो जाता है, या फिर वो अटैचमेंट आपको मेंटल लेवल पे कभी भी अफेक्ट नहीं करता है। कोई भी इंसान, कोई भी सिचुएशन, इवन कोई भी एक्टिविटी, चाहे वो आपकी जॉब हो, आपका प्रोफेशन हो, आपकी फैमिली हो, आपके फ्रेंड्स हो, दे शुड बी स्ट्रेंथ फॉर योर लाइफ। अगर वो वीकनेस लगने लगे, उस केस में आपको ये सोचना पड़ेगा कि मुझे डिटैचमेंट करना है। डिटैचमेंट के लिए आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, प्रोज एंड कॉन्स क्या है, क्या ऐसी कोई चीज है जो मेरी बिल्कुल भी इसके बिना नहीं हो पा रही है, या सिर्फ मेरी थिंकिंग में है। ये पूरी तरीके से जब आप एनालिसिस करेंगे, यू विल गेट ऑल योर आंसर्स, बिकॉज नथिंग इन द लाइफ जो पूरी तरीके से किसी और पे डिपेंड होके हो सकती है। अगर ये हो रहा है, तो वहां पे आपको आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस पे काम करना जरूरी है। सो either you can do this analysis, or if you need, you can have some professional help from any psychologist who can explain you in better way. So these are some ways to develop not exactly detachment, but a mature level or a balanced level of the attachment, which is much required. I hope Karan is satisfied with the answer. Of any other query related to this?
I hope we answered your question, Karan. Anyone else who wants to ask something? Okay, there is another question. How can we combat the feeling of meaninglessness? Okay. मीनिंगलेसनेस, और अगर मैं साइकोलॉजिकली उसको बोलूं तो वो होगा वर्थलेसनेस. एम आई राइट? Yes, ma'am. Meaningless or worthlessness. So, worthlessness is again directly linked to your self confidence. How confident you are feeling. And how confident you are feeling, it never comes from your position, from your status in the society. It just comes the feeling, whosoever I am as a human being, I'm complete, I'm my best version. And if I need to do any competition, that competition should be with myself, so that I can improve myself day by day. तो जब ये फीलिंग आपकी आती है, आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे काम करते हो, आपको आपकी वर्थ पता चलती है कि आप कितना ज्यादा खुद को अप्रिशिएट कर सकते हो, आप खुद के बारे में कितनी चीजें हैं जिन्हें इम्प्रूव कर सकते हो. जैसे जैसे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस स्ट्रांग होता जाएगा, ये जो मीनिंगलेस वाली फीलिंग है, वर्थलेसनेस वाली फीलिंग है, वहां पे वो वैसे ही चली जाती है. वहां पे आपको हर एक दिन जिंदगी का खूबसूरत लगने लगता है. वहां पे आपको आपकी एग्जिस्टेंस खूबसूरत लगने लगती है. वहां पे आप ये नहीं सोचते हो कि मैं शायद किसी के लिए मैटर ही नहीं कर रहा हूँ, ये लाइफ किसी मतलब की ही नहीं है, लाइफ का एंड तो एक ही है, फिर मैं क्या कर रहा हूँ. ये सब जो नेगेटिव थॉट्स है, ये तब तक आएंगे जब तक आप खुद के लिए कॉन्फिडेंट नहीं है. तो लव योर सेल्फ, बूस्ट अप योर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सी द चेंजेस. डेफिनेटली you will be like more worthy. आपसे ज्यादा वर्दी कोई नहीं. if you are here in the world, definitely it means something. तो हर किसी की प्रेजेंस अपने आप में इंपॉर्टेंस रखती है. इस पूरे वर्ल्ड में जितनी भी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन का एक एक पर्सन, एक एक इंडिविजुअल अपनी वर्थ लेके आया है, तभी वो एग्जिस्ट कर रहा है. और वो रियलाइजेशन तभी होता है जब आप खुद को इम्पोर्टेंस, खुद को प्यार देना शुरू करते हैं. To start working on this and see that change. Thank you, ma'am. I hope we answered adequately. I'm sorry I cannot read the handle name. Okay. And right. And do you have any other question? Do you want to ask anything else? Anyone from the audience wants to ask anything, they can comment. You're welcome, man. We'll wait a few more minutes if we have any questions. Yeah. So what's your plan for the Janmashtami, Divya? Are you going to read Gita or you already read? I did read it once, ma'am. Okay. And what But other? at that time, I was not in the level of understanding, can say. बचपन में पढ़ी थी मैम, अभी दोबारा पढ़ने के लिए I have to take out time. Now different lenses from the Yes, lens. ma'am. So as we grow, every age के साथ में जो understanding का lens change होता है, that even if I read the same thing 3 times or 4 times, every time I read it, it gives me a different meaning. Yeah. It happens mostly with stories, but कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आप कितनी बार भी पढ़ो, आपको कुछ ना कुछ नया मिल जाता है. एंड भगवत गीता भी ऐसी है कि आप एक बार पढ़ो, आप 2 बार पढ़ो, आप 3 बार पढ़ो, हर बारी आप एक नया पॉइंट ही लेकर आओगे. यू विल अंडरस्टैंड समथिंग न्यू, राइट? And with Okay. Amber, I think, I don't know it is still available on Netflix or not, but there is a series named Dharam Kshetra. It is again inspired from Mahabharat, but with the different lens. Whatever we have read कि क्या हुआ था महाभारत में, क्या नहीं हुआ था, बट हर एक कैरेक्टर को उन्होंने जिस तरीके से डिफाइन किया है कि वो क्यों जरूरी था उस लाइफ में, अगर उनका नेचर ये था, उन्होंने ये कर्मा किए, उस कर्मा का सिग्निफिकेंस था, और वो कहाँ स्टैंड करते हैं, आने वाली जनरेशन उन्हें कैसे याद रखेगी. इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड धर्म क्षेत्र ऑन नेटफ्लिक्स.
If it is still available, please go and check it out. It is a long series. It is going to take more time, but it's worth it. And you will definitely feel something content in your mind कि yes, every character, even someone asked ना कि self confidence कैसे boost up किया जाए, and as I said कि every individual is important in this world. You will understand this thing from that series because वहाँ पे आपका audio visual memory everything is working. That would be more impactful. So if you have time, please go and watch it. डेफिनेटली मैम, हमने टू वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं इफ Yeah, इट इज स्टिल अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स. yeah. मैम, वी हैव अनदर क्वेश्चन फ्रॉम करण. हाउ Hmm. टू प्रैक्टिस कर्म करो फल की चिंता मत करो इन डेली लाइफ? हम ये My डेली लाइफ में कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? कर्म करो फल की चिंता मत करो. आई थिंक इसका आंसर दिव्या देगी आपको. बिकॉज ये ओके, आई कार्मिक विल ट्राई. वे में अगर मैं देखूं, I have seen her as an intern, then as my colleague, as a friend also. She is very karmic. तो ये इसका आंसर दिव्या देगी आपको. ओके मैम, आई विल ट्राई. तो आप डेली लाइफ में आप इतनी सारी चीजें करते हो, राइट? सम थिंग्स यू डू फॉर योर सेल्फ, सम थिंग्स यू डू फॉर अदर पीपल, बट हर एक चीज के साथ में हमारी एक्सपेक्टेशंस जुड़ी होती है कि अगर मैंने ये किया है तो मुझे सामने से ये मिलना चाहिए, अगर मैंने अपने लिए भी ये किया है तो मुझे ये रिटर्न मिलना चाहिए. सो कहीं ना कहीं अगर हम अपनी एक्सपेक्टेशंस पे काम करें और अगर हम उसको कम करने पे काम करें, सी एक्सपेक्टेशंस कहीं नहीं जाने वाली है, एक्सपेक्टेशंस कभी 0% नहीं होने वाली है, बट एक्सपेक्टेशंस आप मिनिमल कर सकते हो. अगर आप वो एक्सपेक्टेशंस को मिनिमल कर देते हो तो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ कर्म कर रहे हो. आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि आपको कुछ मिलेगा रिटर्न में. एंड मतलब ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी बड़ी चीजों में हमें ऐसा करना चाहिए, बट डेली लाइफ की छोटी छोटी चीजें, अगर हमने ग्लास भी दे दिया पानी भर के किसी को, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब हमें पानी चाहिए होगा तो द सेम पर्सन विल गिव अस वाटर. ये भी एक्सपेक्टेशन क्यों रखनी है? तो डेली लाइफ में अगर आपको प्रैक्टिस करनी है ये चीज जेन्युइनली, तो ये जो एक्सपेक्टेशंस है ना, हर काम से जो हमने जोड़ दिया है, जो कि बहुत नेचुरली हमने सोसाइटी से पिकअप करी है, उसको हम रिड्यूस करने पे काम कर सकते हैं. दैट इज व्हाट आई थिंक एंड दैट इज व्हाट आई प्रैक्टिस. Exactly, you are right. So कर्म करो फल की चिंता मत करो. बस उसमें एक ऐड है, यू नीड टू बी डायरेक्टेड. डायरेक्शन लेस होने की जरूरत नहीं है. बी डायरेक्टेड, बट हाँ, डोंट थिंक मच अबाउट इट कि कितना रिजल्ट आएगा, क्या आएगा. इवन अगर आप पढ़ भी रहे हो, सो देर आर मेनी स्टूडेंट्स, इवन देर आर मेनी पेरेंट्स हु ऑलवेज एक्सपेक्ट कि आपको इतना पढ़ना है, आपको 90% ही लाना है, आपको 100% ही लाना है. उस केस में हम पढ़ाई को एक बर्डन बना लेते हैं. पढ़ना है, रटना है, बस मार्क्स लेके आना है. बट पढ़ाई का जो मोटिव था, लर्निंग, विच इज मिसिंग. तो अगर आप फल की चिंता किए बिना सिर्फ पढ़ाई करेंगे तो उसमें आपको वो लर्निंग मिलेगी. इन द सेम वे, अगर आप डेली डे टू डे लाइफ में जो भी आप कर रहे हैं उसे आप इंजॉय करेंगे, एक एक मूवमेंट को माइंडफुलनेस के साथ एंजॉय करेंगे, वेयर एवर यू आर, वॉट एवर यू आर डूइंग, और बिना ये सोचोगे कि इसका मुझे क्या फल मिलने वाला है, आपको वो एक एक अलग जो सेंस ऑफ एंजॉयमेंट होता है. कई बार लोग बोलते हैं कि मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा. वो क्यों नहीं अच्छा लग रहा? क्योंकि आपने वो सेंस पूरी तरीके से मिस किया हुआ है. यू आर मोर फोकस्ड, जो मैं आज कर रहा हूँ मुझे उसके लिए कल क्या मिलेगा. आज जो कर रहे हो, अभी जो कर रहे हो, पहले उसमें तो डूब के देखो, तब आपको पता चलेगा कि इसका इंजॉयमेंट क्या है, इसकी फीलिंग्स क्या है. जब वो फील करना शुरू करोगे, अपने आप ये फिलोसफी आपके लिए फॉलो होती चली जाएगी और आपका पर्सपेक्टिव बहुत पॉजिटिव हो जाएगा. ओके, एनी अदर क्वेश्चन? Yes, ma'am, we have one more. So, क्या? Safi Sahu. Right. I'm sorry if I'm pronouncing the name wrong. The person is asking some more tips for managing anger outburst issues along with reading Bhagavad Gita. तो एंगर मैनेज करने का कोई और अगर टिप है तो? एंगर मैनेजमेंट का सबसे पहला जो तरीका है करने का, साइकोलॉजिकली बहुत सारी टेक्निक्स है. डीप ब्रीदिंग करिए और अपना रूटीन मेंटेन कीजिए, पर्सनालिटी फॉर्मेशन कीजिए. दिस इज ऑल अबाउट थेरेपी. अभी मैं वो उसके बारे में बात नहीं करूंगी. बहुत इन जनरल स्टार्ट करने के लिए, जब हम सीवीटी में भी ट्राई करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल, एंगर क्यों आ रहा है, ये सबसे पहले आपको खुद से पूछना है. मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? क्या सिचुएशन ठीक नहीं है?
क्या जिस पर्सन पे मुझे गुस्सा आ रहा है मैं उसे पसंद करता हूँ, नहीं करता हूँ, या मैं इतना ज्यादा पसंद करता हूँ कि मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई हो गई हैं इसके साथ में, या मुझे इसकी एग्जिस्टेंस से प्रॉब्लम है, क्या मैं इस सिचुएशन में ठीक हूँ, या फिर अगर ये सब कुछ ठीक है क्या मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है, क्या मेरी मतलब मैं इस हैबिट पे आ चुका हूँ कि आई एम जस्ट गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड विथ एवरीथिंग। अच्छा हो रहा है तो मुझे कंप्लेंट्स हैं, बुरा हो रहा है तो मुझे कंप्लेंट्स हैं। तो एंगर आ क्यों रहा है, एंगर का रीजन क्या है? अगर आप उस रीजन को एक बार पूछेंगे, आपका एंगर मैनेजमेंट 50% कम हो जाएगा, बिकॉज यू विल गेट रियलिटी चेक ऑफ योर एंगर स्टेट कि गुस्सा शायद मुझे थोड़े टाइम के लिए आ रहा है, शायद मैंने उस सिचुएशन को, उस प्रॉब्लम को बहुत एक्सरेट कर दिया है, उस गुस्से से कुछ मिलने नहीं वाला है, बस हमने सोचा, ओवर थिंकिंग हम करते हुए चले गए, मुझे बुरा लगा और वो मुझे बुरा लगता चला गया। उसको मैंने कभी रुक के पॉज लेके रीएनालिसिस नहीं किया कि क्या दोबारा इस सिचुएशन के बारे में सोचा जा सकता था, क्या दोबारा उस पर्सन के बारे में सोचा जा सकता था, मे बी दे माइट हर्ट यू, ठीक है, क्या उनकी सिचुएशन के बारे में हमने सोचा, क्या उनके साथ में कुछ गलत चल रहा था? तो गुस्सा क्यों आ रहा है, पहले वो रीजन को निकालिए। उस रीजन को अगर आप एनालिसिस करने के लिए जाएंगे, आपका एंगर मैनेजमेंट अपने आप हो जाएगा। द अदर पार्ट, गुस्सा जब हम दूसरे पे करते हैं, हमें लग रहा है कि हम दूसरे पे गुस्सा कर रहे हैं, हम दूसरे को फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे हैं, बट नो, आप गुस्सा खुद के ऊपर कर रहे हो, आप खुद को फ्रस्ट्रेट कर रहे हो। क्या वो गुस्से से, या तो बाई चांस उस गुस्से से, जैसे बच्चों के साथ है, आपने थोड़ा सा गुस्सा दिखाया, उनका बिहेवियर इंप्रूव हो गया, दैट इज डिफरेंट वे, अ काइंड ऑफ पेरेंटिंग, अ काइंड ऑफ टीचिंग, अ वे ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन, थोड़ा सा गुस्सा, राइट? बट आप अगर किसी एडल्ट के साथ में, किसी कुलीग के साथ, किसी फ्रेंड के साथ, सीनियर जूनियर के साथ में इस एंगर को यूज कर रहे हैं, क्या आपका वो एंगर उस पर इम्पैक्ट डाल रहा है? नहीं डाल रहा। हाँ, ये जरूर हो रहा है कि वो मूड आपका खराब कर रहा है, आप फिजिकली मेंटली अपने आप को परेशान कर रहे हो। तो गुस्सा किसके ऊपर कर रहे हो, पहले ये भी सोचना आपके लिए जरूरी है। तो जब ये 3 पॉइंट्स आप एनालिसिस कर लेते हैं, क्यों आ रहा है, किस पे आ रहा है, अगर ये सिचुएशन के क्या इसमें रीएनालिसिस किया जा सकता है, एंगर मैनेजमेंट का पार्ट आप अपने आप कवर कर लेते हैं। दिस ऑल वी डू इन द सिस्टमेटिक कोर्स ऑफ साइकोथेरेपी। अगर लेमन लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं तो सिर्फ ये 3 पॉइंट्स है जो आपको एंगर मैनेजमेंट के लिए बहुत हेल्प करने वाला है। Nice. Thank you, ma'am. We have one more question. हम्म। Um, Janice is asking, what are the keys to maintain a healthy relationship? Keys to maintain a healthy relationship, फर्स्ट तो क्वेश्चन में ही आंसर है, रिलेशनशिप नीड टू बी हेल्दी। डेफिनेटली Hmm. एक रिलेशनशिप को हेल्दी होना बहुत जरूरी है, जहां पे एक बाउंड्रीज हो, रिस्पेक्टेबल बाउंड्रीज हो। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, दैट डजंट मीन कि आप पूरी तरीके से किसी को कंट्रोल करेंगे, ठीक है, या आपकी कोई बाउंड्रीज नहीं है। हम सबसे पहले ये भूल जाते हैं, चाहे वो हमारे दोस्त हो, चाहे हमारा पार्टनर हो, चाहे हमारी फैमिली हो, हर रिलेशनशिप में एक रिस्पेक्टिव बाउंड्री होना बहुत जरूरी है। दे माइट नीड सम मी टाइम, दे माइट नीड समथिंग विच दे डोंट वांट टू शेयर, बट आपको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप है तो मुझे सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। ट्रांसपेरेंसी इज ऑल्सो अ थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप में, बट ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये है कि कंसेंट होना जरूरी है कि मैं एज अ पर्सन क्या आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर मैं बोलूं ट्रांसपेरेंसी है, यस आई हैव समथिंग इन माय माइंड बट आई डोंट फील लाइक शेयरिंग, और आई डोंट फील लाइक शेयरिंग एट दिस मोमेंट, दिस इज ट्रांसपेरेंसी, एंड एट द सेम टाइम आई एम मेंटेनिंग माई बाउंड्रीज। तो ये चीज जिस दिन हम समझ जाते हैं कि यस इस रिलेशनशिप में एक बाउंड्रीज होगी, ठीक है, अब वो बाउंड्रीज उस लेवल पे भी है। कई बार आपने देखा होगा रिलेशनशिप में दैट कहीं ना कहीं वो एक्टिव पैसिव रिलेशनशिप चलता है, एक है जो बहुत Hmm. सबमिसिव है, एक है जो बहुत डोमिनेटिंग है। तो अगर आप सबमिसिव हो भी, एज अ नेचर आपका ऐसा ही है कि आप सबमिसिव हो या आप डोमिनेटिंग हो, बट किस डिग्री तक, ये समझना भी इंपॉर्टेंट है फॉर अ हेल्दी रिलेशनशिप। सबमिसिव होना, बट एक बाउंड्री के साथ में कि मैं इससे ज्यादा सबमिसिव नहीं हो सकती। दिस इज द क्वेश्चन ऑन माई डिग्निटी और दिस इज द क्वेश्चन ऑन माई सेल्फ स्टीम, वो मुझे समझना जरूरी है।
मैं अगर डोमिनेटिंग हूँ, मैं अगर एग्रेसिव हूँ, उसमें भी मुझे ये समझना जरूरी है कि जो दूसरा पर्सन है उसकी एक बाउंड्री है, मुझे वहीं तक जाना है, उसके आगे मैं नहीं जाऊंगी। एंड कंट्रोलिंग नहीं होना। आप रिलेशनशिप को ना हमेशा ऐसे बांधते हो, बहुत से लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम है, और वो हेल्दी रिलेशनशिप नहीं होता, वहां पे वो टॉक्सिक रिलेशनशिप बन जाता है। व्हेन यू कम लाइक दिस कि ये मेरा है, ये मेरा है, जब ये आपका है ना तो ये आप ही का रहेगा। आपको उसको प्यार से ऐसे संभाल के रखना है, ना कि आपको उसको जकड़ना है। तो वो जकड़न की जगह पे अगर आप उसे कंफर्ट स्पेस देंगे, वो रिलेशनशिप हमेशा आपके पास में ही रहेगा, ना कोई इनसिक्योरिटी होगी। और अगर वो दूसरे पर्सन से हो रहा है, और ये दोनों पार्टनर्स का रोल है, यहाँ पे किसी एक पार्टनर का रोल नहीं है। हेल्दी रिलेशनशिप के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी नीड टू मेच्योर पीपल, two significantly mature people. One can be more mature, one can be slight little, like, but at least the other mature person can lift up. तो वो इक्वालिटी बनी रहेगी और वो रिलेशनशिप हेल्दी रहेगा। तो दिस आर सम रिक्वायरमेंट्स टू हैव अ हेल्दी रिलेशनशिप। एंड यस, एनी रिलेशनशिप नीड टू बी हेल्दी। टॉक्सिक रिलेशनशिप बहुत टाइम तक नहीं चल पाते। शुरू में वो हमें बहुत पैशनेट लगते हैं, हमें बहुत एक्साइट भी करते हैं, बट विद द टाइम वो कहीं ना कहीं एक एक पूरी तरीके से डैमेज करके जाते हैं, कभी किसी एक पर्सन का, कभी दोनों का। So, Janice, thank you for this question. I think this topic is much more important. We can have a complete workshop over it. Ki what is difference between healthy relationship and toxic relationship? Thank you for your questions. Anyone else in the audience who wants to ask anything? You all are very welcome. Anyone else? Anything you want to ask about mental health? I'm so far no further questions. Okay, so I think we can close the live session for as of now, and definitely we are going to have live session, more live session in coming time. Uh, we are actually laking off in last few months because we both were having some emergency situations, sometimes in the family, sometimes in the profession. So we are sorry for that, but we promise you to bring you more workshop, to bring you more engaging activities in near future. Thank you so much, everyone. Have a good day and have a good health, especially mental health. मैम, जाते जाते एक आखिरी सवाल और है, इफ यू हाँ, ओके। ओके, तो क्वेश्चन आए हैं ऋचा शर्मा से, व्हाट टू डू विद एन ओवर थिंकर एंड हाउ टू डील विद एन ओवर थिंकर। So she is asking overthinker as another person or her for herself. Okay, that is not clear, but I think So I somewhere she's asking for like herself. this. Overthinker is a clear sign of that personality. That Hmm. person is much concerned about the future. ओवरथिंकर, मैं क्या Hmm. होगा, अब क्या होगा, अब इसमें होगा तो कैसे होगा। एंड दैट पर्सन इज हैविंग सम इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो, जहां उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट नहीं है। उसके अपने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो उसको बार बार ये नए नए क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, और वो एक क्वेश्चन के बाद दूसरे क्वेश्चन पे वो लूप चलता जा रहा है, जिसे हम ओवर थिंकिंग कहते हैं। तो ओवर Hmm. थिंकिंग के जो बेस्ट वे होता है, एक है डिस्ट्रैक्शन, एक है टू चैलेंज दैट क्वेश्चन। लेकिन पहले जो हम यूज करते हैं वो हम डिस्ट्रैक्शन यूज करते हैं। आप डिस्ट्रैक्ट कीजिए दिमाग को, आप रिलैक्स कीजिए दिमाग को, जिसे इन जनरली थॉट स्टॉपिंग बोला जाता है। बहुत कॉमन यूज में है ये, बहुत कॉमन यूज में। जस्ट से स्टॉप, स्टॉप योर माइंड कि मुझे ये ओवर थिंकिंग नहीं चाहिए। Then relax your mind and distract yourself. You can do backward counting, you can connect with some other activity which is more content, and then just relax your mind. इसके बाद में यू विल आस्क द क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है ओवर थिंकिंग के कंटेंट में, एक बार काउंटर क्वेश्चन करके देखिए, रादर देन हैविंग दैट चेन ऑफ द थॉट्स जो नेगेटिवली चलता चला जा रहा है। दैट थॉट विच इज कमिंग टू योर माइंड, जस्ट काउंटर दैट थॉट। वाई, ये क्यों होगा, मैं फेल हो जाऊंगा,
मैं कोई रिलेशनशिप होल्ड नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? मैं आई एम अ गुड पर्सन, आई एम अ गुड लिसनर, whatsoever qualities you are having in your personality, question that answer with full honesty, and definitely you will have laser और limited questions in the future। वो loop धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। Now coming to the how to deal, if you are asking in that way, you have some another person who is overthinking and you want to deal it। उन केसेस में जब हम रिस्पोंडेंट होते हैं और हमारे पास कोई ओवरथिंकर है जो बहुत सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप में है, आप अवॉइड नहीं कर सकते, उस केस में आप जितने ज्यादा आंसर्स दोगे उस ओवरथिंकर को, उसका वो स्टिमुलेशन बढ़ता चला जाएगा। उसको पता है कि मैं यहाँ पूछूंगा मुझे आंसर मिलेगा, वो होता जाएगा, वो होता जाएगा। तो आपको एक्टिव लिसनिंग करना है। एक्टिव लिसनिंग की हाँ आपने सुना, आपने एक्नॉलेज किया, बट एट द सेम टाइम आपको सिर्फ एक लॉजिक देना है, उन आंसर्स को रिपीटेडली नहीं देते हुए चले जाना है। अगर आप रिपीटेडली आंसर्स देते जाओगे, ना तो उनकी ओवरथिंकिंग कम होने वाली है, ना ही वो कंट्रोल होने वाली है। तो थोड़ा सा असर्टिव वे में यू नीड टू लॉजिकली हैंडल द सिचुएशन। ओके, यू आर थिंकिंग, और जस्ट ऐसे नहीं कि आप ये फालतू में सोच रहे हो। अच्छा ठीक है, तुम्हें लगता है तुम फेल हो जाओगे। क्यों फेल हो जाओगे? तुमने तो पढ़ाई की है, राइट? तुम तो इंटेलिजेंट हो, तुम तो ये कर सकते हो। अगर उसको तब भी समझ में ना आए तो जस्ट रिकॉल ऑल द पास्ट अचीवमेंट्स, कि पहले आपने क्या अचीव किया था। कई बार हम लोगों को रीअश्योरेंस देने की भी जरूरत होती है ओवर थिंकिंग पैटर्न में। तो जब आप दूसरों के साथ डील करोगे तो ये वे काम करेगा, खुद के साथ डील करोगे तो आपको अपने माइंड को क्रॉस क्वेश्चन करना होगा और उसको स्ट्रिक्टली आपको स्टॉप करना होगा। दिस आर टू वेज टू हैंडल ओवर थिंकिंग। Ma'am, I would like to add something to this. So हम्म there is another way that has recently come. एक और strategy है जो I have seen it work with patients also. That postpone करना सीखते हैं। हम्म हमें पता है, वी नो इंटेलेक्चुअली कि अगर हम किसी चीज के बारे में चिंता कर रहे हैं तो हमें चिंता करने से कुछ मिल नहीं रहा है। डिस्ट्रैक्शन का ही एक पार्ट है। जब आप हम्म, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, थोड़ा एक्सटेंड किया। यस मैम। वो डिस्ट्रैक्शन का ही एक पार्ट है। तो मैम इन दैट वी बेसिकली पोस्टपोनिंग आवर वरी। हम्म हम्म एंड उसमें मेजरली होता क्या है, अगर हम पोस्टपोन कर रहे हैं कि हम एक पर्टिकुलर टाइम पे उसके बारे में सोचेंगे, पीपल यूजुअली डोंट इवन रिमेम्बर कि उनको हम्म चिंता करनी थी, हम्म बिकॉज अल्टीमेटली उनको चिंता करके कुछ फायदा नहीं हो रहा है। तो अगर हम ओवर थिंक कर रहे हैं और हमें कुछ मिल नहीं रहा है उसका, देन हम्म अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू बी यू कैन से डिसएडवांटेजेस फॉर अस, हम्म राइट? तो कैसे हमें उसमें एंगेज ही नहीं करना है, वो हम्म भी सीख सकते हैं। हाँ, वो भी वो सीखना। भी एक तरीका हो सकता है। जी। तो इसके लिए देन अगेन एंड अल्टीमेटली जो इन तीनों को मिला के भी ये होता है कि मैंने जैसे बोला ना, ओवर थिंकिंग अगर है तो फ्यूचर लेके ज्यादा परेशान है, तो इन दैट केस डेफिनेटली। माइंडफुलनेस पे हमने वर्कशॉप भी की हुई है। यू विल फाइंड सम कंटेंट अबाउट माइंडफुलनेस इन आवर पेज। गो एंड ट्राई प्रैक्टिस इट, बिकॉज माइंडफुलनेस बहुत हेल्पफुल होता है टू कीप योर माइंड इन स्टेबल पोजिशन, कि आप बहुत ज्यादा वरी भी नहीं करोगे, आप बहुत ज्यादा परेशान भी नहीं होगे, स्टेबिलिटी को कैसे बना के रखोगे। तो ये एक मेजर टेक्निक है टू हैंडल ओवर थिंकिंग। द अदर टेक्निक्स विच वी टोल्ड यू, इट इज पार्ट ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, प्योर साइकोलॉजिकल टेक्निक, right? So you can practice any of that, and if you need further help, definitely you are welcome to ping us on our Instagram handle, and definitely we will answer it, right? So ma'am, one question has been asked a few times, how to deal with depression? Hmm. उससे बाहर कैसे आए? डिप्रेशन से बाहर कैसे आए? डिप्रेशन से बाहर आने के लिए सबसे पहले जो है कि आपको यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज कि डिप्रेशन में एक सबसे मेजर जो फैक्ट आता है, सबसे पहले इन जनरली अगर देखा जाए, मैं आपको भी ठीक ही नहीं हो पाऊंगा, लाइफ कभी चेंज ही नहीं होगी। वहां पे हम्म, सबसे पहले आपको ये समझना है ये सिर्फ लाइफ का एक फेज है। जैसे आप पहले खुश थे वैसे ही आज आप दुखी हैं, सैडनेस आपकी शायद ज्यादा हावी है। डिप्रेशन मूड डिसऑर्डर का एक पार्ट होता है। मतलब आपका मूड है या तो बहुत ज्यादा हाई पे चला गया तो वो मैनियक हो गया, बहुत लो पे चला गया वो डिप्रेशन हो गया, एंड जो बीच में रहता है वो हमारा जनरल मूड रहता है। किसी का
सबके अलग अलग मूड्स हैं, कुछ लोग हमेशा हैप्पी गो लकी होते हैं, कुछ लोग हमेशा थोड़े से एंशियस होते हैं, कुछ लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, बट इट इज योर यूजुअल मूड। उनमें से अगर वो ऊपर नीचे हो रहा है, सैडनेस पे जा रहा है, तो वो डिप्रेशन है। तो फर्स्ट थिंग you need to understand, this is just a phase of life. It will get over, as I am not in the same state जिसमें मैं पहले थी, इसके पहले। अगर वो मेरे साथ नहीं रहा तो ये भी मेरे साथ नहीं रहेगा। सबसे पहली थिंकिंग ये है। उसके बाद में आप ट्रीटमेंट पे आएंगे। यस, आई नीड टू मेक सम चेंजेस। प्रोफेशनल हेल्प इज ऑलवेज मस्ट। डिप्रेशन के केसेस में आई वुड नेवर डिनाई फॉर दिस थिंग कि आप घर बैठे बैठे डिप्रेशन ठीक कर सकते हैं। नो, you always need professional help from any clinical psychologist. Medicines are always not required, but if you are falling into moderate to severe level of depression and you are having severe physical complication, उस केस में आपको मेडिसिन्स भी लेनी होगी। ये फैक्ट्स हैं। अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे, डेफिनेटली आप डिप्रेशन से डील कर सकते हैं। अब घर बैठे हुए हम क्या कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रीटमेंट ऑल्सो? आपको मोटिवेशन को बनाए रखना है। सबसे कोर फीलिंग होती है, मुझसे बेड से नहीं उठा जा रहा, मुझसे ये नहीं होगा। ठीक है, तो यूज टेक्नोलॉजी टू कीप रिमाइंडर्स। आप अपने टाइम को डिवाइड कीजिए, एक्टिविटी शेड्यूलिंग कीजिए। इतना टाइम है मेरे पास में, मैं ये टाइम। I'm sorry, ma'am. Your voice is not audible. Ma'am, am I audible to you? I think there is some network issue. Are we audible to you, people in the audience? Okay. Shweta ma'am, you're not audible. Okay, I will try to get her back. Just give me a minute. Ma'am, you're not audible. Can you hear us? Ma'am, can you try? You were not audible before, ma'am. Okay, I think she's rejoining. Just a minute. I think I was disconnected between the time. Yeah, you were not audible for a while you were explaining about कि घर पे रहकर हम क्या कर सकते हैं डिप्रेशन के लिए। तो Okay. in between that आपकी आवाज चली गई थी मैम। ट्रीटमेंट प्लान भी डिस्कस, राइट, कि यू नीड टू। एक्टिविटी शेड्यूलिंग। तो घर पे रहते हुए, एज जी। आई वॉज टेलिंग, दो इट वॉज नॉट ऑडिबल, अगेन कमिंग टू द पॉइंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज टू दैट आपके दिमाग में जो ये चीज है, आपने वो एक्सेप्टेंस जब लाई कि हाँ ये फेज है, दैट फेज विल गेट ओवर। देन कमिंग टू एक्टिविटी शेड्यूलिंग पार्ट एंड सीइंग योर ग्लास एज अ फुल। आप यूजुअली क्या करते हो, जो थोड़ा बहुत भी काम आप कर रहे हो, आप उस केस में सोचते हो कि मैं पहले 100% कर पा रहा था, अब तो मैं यही कर पा रहा हूँ। दैट इज योर नेगेटिव पर्सपेक्टिव। बट व्हेन यू एक्सेप्टेड दिस सिचुएशन, ओके दिस इज माय फेस, I might feel sad, I might feel low. So if I'm doing 10% only, there should be a sincere acknowledgement about it. Okay, I'm able to do at least 10%. I would be able to do 15%, 20%, or maybe sometime 5%. Whatever it is, but you are making constant efforts. So that constant efforts with sincere acknowledgement is much, much required in the state of depression. Other thing which you can do, please maintain a activity scheduling. Whatever time you are having, if you are not able to wake up early in the morning, that is completely okay. You wake up at 10 or maybe 11, but just fix the timing जो भी आप लेना चाहते हो।
रात में नींद नहीं आती है, ओके, ट्राई टू डू सम कंटेंट फुल एक्टिविटीज. इट कुड बी आप चाहें तो आप पेंटिंग कर सकते हैं. डिप्रेशन के केसेस में एक और भी चीज है, एक इम्पॉर्टेंट चीज, मतलब मैं उसमें बीच में ऐड करना चाहूंगी, बिकॉज लोगों को लगता है योगा विल हेल्प अस. सो yoga is a general recommendation for many mental health disorders, but you need to understand in which cases yoga might be helpful and in which cases it is not required. It could be required later stage, but डिप्रेशन के केस में शुरू में अगर आप योगा में जा रहे हैं या आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस में जा रहे हैं, आप अपनी थिंकिंग को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, आप कंसंट्रेशन को और बढ़ा रहे हैं. सो यू नीड मोर एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व फिजिकल वर्कआउट. चाहे आप वॉक करें, चाहे आप ब्रिस्क वॉक करें, या आप कुछ और भी करना चाहें, बट जिसमें फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा हैं, वो आपको हेल्प करेगा उस डिप्रेस स्टेट से निकालने के लिए. योगा, ध्यान, डीप ब्रीदिंग इज नॉट समथिंग जो हम डिप्रेशन में फर्स्ट हैंड पे रिकमेंड करेंगे. ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है. लोगों को लगता है, घर वाले भी बोलते हैं योगा करना शुरू करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा. हर बार योगा से नहीं होगा. योगा से होगा बहुत कुछ, बट हर बार नहीं होगा. तो जो भी आप कर रहे हैं, जब आपको रात में नींद नहीं आ रही है, डू समथिंग जिसमें आपकी क्रिएटिविटी एक्सप्रेस हो सके. थॉट्स आ रहे हैं, राइट इट डाउन. आप पोइट्री लिख सकते हो, कुछ और नहीं लिखना है, आप सिंपल राइटिंग कर लीजिए, फ्री फ्लो राइटिंग कर लीजिए. और यू कैन वॉच समथिंग, बट दैट शुड बी जो आपका मूड है उससे थोड़ा सा अपोजिट ट्राई करके देखिए. एंड डोंट फोर्स योरसेल्फ कि मुझे ये अच्छा लगना जरूरी है. कई बार हमें सिर्फ एंगेज होना जरूरी है, हर बार अच्छा लगना जरूरी नहीं है. तो इस तरीके से अपने डेज को प्लान करते हुए, एक चार्ट बनाते हुए, उस एक्टिविटी शेड्यूलिंग को अगर आप फॉलो करना शुरू करेंगे, एंड पर डे में सपोजिटली मैंने 10 to 11 का टाइम असाइन किया फॉर सम स्पेसिफिक एक्टिविटी. आई विल गो एंड टेक बाथ, आई विल गो टू टूथब्रश, राइट. सो दिस आर सम सिमिलर एक्टिविटीज जो हमें कहने में बहुत नॉर्मल लग रही है, बट व्हेन अ पर्सन इज डिप्रेस्ड ये बहुत बड़ी एक्टिविटी होती है. टू टेक बाथ ऑन डेली बेसिस, टू डू ब्रशिंग ऑन डेली बेसिस, even to have food on daily basis. So these are important activities. उन्हें आप मार्क आउट कीजिए, उस ड्यूरेशन में रखिए. जब जब आप वो कर पा रहे हैं, जस्ट टिक मार्क कि हाँ ये हो गया. किसी दिन नहीं भी हो पाया, कोई बात नहीं. You will be able to see your progress on that activity chart, and then you will see, yes, I'm improving, I can improve, I can come out from this depressive state. So acceptance and do that active contribution to deal with the situation, that is much required with your professional help, with your psychotherapy plan, or sometimes with the medication for the management of depression. Yes. Thank you, ma'am. I don't think we have any more questions. Yeah. That was last. So, ma'am, do you want me to ask again? No, I think we already extended our short live session. Yeah. But we are really thankful to all of you. There are many people who are joining, even apart from interns. We are always grateful and we always look forward for your support. It's a small foundation, and as you know, we are not working for the money in this way. We just want, yes, everyone need to have that significance of mental health. इंडिया में वो चीज आ जाए, जैसे हम बुखार के लिए जाते हैं ना डॉक्टर के पास में, सिंपल वे में लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जाना जिस दिन शुरू हो जाएंगे ना, उस दिन शायद हमारा पर्पस पूरा हो जाएगा. सो एंड प्लीज हैव full fun with keeping your mental health as a priority in the mind. So thank you so much everyone. Have a good day, have a good evening, and Happy Janmashtami again. Happy Janmashtami again. Okay, thank you Divya for joining from your busy schedule and doing again. Same to you, ma'am. And guys, I'm telling you, whenever you need any workshop, whenever you need any talk, just drop a message to Divya, because she is the one who's coordinator and she is the one that workaholic or as I said, ये करवा देगी फाइनली. तो आपको जिस पे भी वर्कशॉप चाहिए, आप लोग प्लीज दिव्या को फॉलो कीजिए और दिव्या से बोलिए. डेफिनेटली यू विल गेट इट on the account of Mansa. You can drop a text on Mansa because it's a public account. तो आप में से कोई भी मैसेज कर सकता है. जिस भी टॉपिक पे आपको वर्कशॉप चाहिए, please let us know and we'll try our best to arrange it as soon as we can. Yeah. Thank you so much for joining us today. Thank you. Signing off. Bye bye. Bye bye.